Okay. Okay, ji. Assalamu alaikum, dear class. As you know, I'm the course instructor Tuba Asif for the course of Nutrition and Genomics. So today we are going to discuss another disease that can have so many effects on your diet and your nutrition and your genetics. So today we will be having a presentation, and I would like to ask us Hafsa to continue with it. स्टार्ट करूं. अस्सलाम वालेकुम. My name is Faika Fiaz and my topic of presentation is arteriosclerosis, and my group member names are Faika Fiaz, Saira Zaman, Hafiza Hafsa, Anika Zahid and Sana Hussain. Arteriosclerosis. Overview. Arteriosclerosis occurs when the blood vessels that carry from your heart to the rest of your body becomes thick and stiff, sometimes restricting blood flow to your organs and tissues. Healthy arteries are flexible and elastic, but over time, the walls of your arteries can harden, a condition called as hardening of the arteries. What's the next? Arteriosclerosis refers to the buildup of fats, cholesterol, and the other substance in any of your artery, which is called as plaque, which can restrict your blood flow. Arteriosclerosis, also known as arteriosclerotic disease or ASVD. Types of arteriosclerosis. There are mainly three types of arteriosclerosis: peripheral arterial disease, peripheral vascular disease, and lower extremity vascular disease. Peripheral arterial disease. Have the next. Peripheral arterial disease is a narrowing of the peripheral arteries serving the legs, stomach, arms, and head. Peripheral arterial disease most commonly affect the arteries in the legs, and your risk for peripheral arterial disease increase with age. And high blood pressure or high cholesterol put you at a risk for peripheral arterial disease. And the complication of peripheral arterial disease are critical limb ischemia, stroke, heart attack, and severity may cause death. The main causes are smoking, diabetes, obesity, a body mass index over 30, and high blood pressure, high cholesterol, increasing age, and family history of peripheral arterial disease. Peripheral vascular disease. Peripheral vascular disease, also called as PVD, refers to any disease or disorders of the circulatory systems outside of the brain and heart. The term can include any disorders that affect any blood vessels. The most common cause of peripheral vascular disease is peripheral arterial disease, which is due to the arteriosclerosis. Fatty materials build up inside the arteries and mixes with the calcium, scar tissues, and other substances. The pain areas and symptoms. The first pain area is leg. The symptoms are reduced hair growth, cramps, and when lying in the bed. Legs and arms, reddish and pale skin, and in legs and feet, thin or pale skin, weak pulses, wounds or ulcers that won't heal, and in muscles, feel numb and heavy. Further, I will continue. हफ्सा आगे कर दो सिम्टम पे. Assalamu alaikum. My name is Saira Zaman, and today I present the topic symptoms and symptoms of atherosclerosis and diet recommended in atherosclerosis and food avoided in atherosclerosis. And there are specific signs and symptoms of atherosclerosis which depend on specific artery being obstructed. atherosclerosis के जो symptoms हैं वो specific artery पे depend करते हैं.
कि मतलब किस आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज में इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इन हार्ट आर्टरीज, इन द आर्टरीज ऑफ हार्ट, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर होते हैं हार्ट अटैक के। इसमें जो है वो चेस्ट पेन हो जाती है पेशेंट्स को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। इसमें जो है पेशेंट्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफ़र करता है। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट को ब्लड, ऑक्सीजन सप्लाई करती है और न्यूट्रिएंट्स को। जब इनकी नैरोइंग स्टार्ट हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस में, तो इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो लो हो जाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस चेस्ट पेन कॉज करता है। और अदर जो है एथेरोस्क्लेरोसिस इन द आर्टरीज ऑफ ब्रेन, symptoms such as sudden numbness or weakness in legs and arms। सडन नमनेस मतलब जो पेशेंट है उसको लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब उसको कोई सेंसेशन फील नहीं होगी इसमें, मतलब आर्म्स में और लेग्स में, इसमें ये होगा। और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और स्लर्ड विजन, उसको स्पीकिंग में डिफिकल्टी आएगी। स्लर्ड विजन मतलब अगर वो कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक नहीं होगी इसमें। ड्रॉपिंग मसल इन दी फेस, इसमें ये एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होगा कि जो मसल्स हैं वो फेस के वो वीक हो जाएंगे, वन साइड से वो मे बी पैरालाइज भी हो जाए। टेम्पोरेरी लॉस ऑफ विजन इन वन आई, जो एक आंख है उसमें टेम्पोरेरी लॉस मतलब वक्ती तौर पर उसमें दिखाई देना भी बंद हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। दी सिग्नल आर ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक विच इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड टू स्ट्रोक। इसमें ट्रांसिएंट, लेकिन अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फर्दर स्ट्रोक भी कॉज करेगा। Atherosclerosis in the arteries of legs and arms produce decreased blood flow is called peripheral artery occlusive disease. Have symptoms such as leg pain when walking. एक्लूसिव पेरिफेरल डिजीज जो है इसमें ब्लॉकेज और नैरिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है। ये यूजुअली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। इसमें होता है कि जब पेशेंट वॉक करता है तो इसको लेग्स वगैरह में पेन फील होती है। Atherosclerosis in the arteries leading to kidney develop low blood pressure, kidney failure। जो ये किडनी के आर्टरीज में भी हो सकता है जब ब्लड सप्लाई जो है किडनी के फंक्शन के लिए प्रॉपर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की जरूरत होगी। अगर ब्लड सप्लाई लो हो जाएगी, प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। डाइट recommended to atherosclerosis patients। The relationship between the consumption of vegetable and fruits and atherosclerosis disease have been reported in many epidemiological studies showing a reduce or control the severity of atherosclerosis. For example, vitamin C and E, green and yellow vegetables are good for these patients। ये इनमें विटामिन सी, ई और जो वेजिटेबल्स हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो फैसिलिटेट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट को थ्रू वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स। ये इनहिबिशन करवाता है एलडीएल की। एलडीएल जो है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और वो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, तो ये उसकी इनहिबिशन करवाएगा। सायरा जो दोबारा बताएं, एलडीएल क्या है? आपने क्या बताया है? व्हाट इज एलडीएल? एलडीएल जो है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। ठीक है, आगे। ये जो है ये प्लैक फॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करवाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज गुड फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट्स। विटामिन सी रिच सोर्सेज जो हैं इसमें सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, लेमन, बेरीज, टोमेटोज, कीवी फ्रूट, ब्रोकली, स्प्राउट। विटामिन सी जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी बहुत, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल स्पिनच, केल एंड मस्टर्ड बीन्स। जो फूफाज हैं वो भी एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को रेकमेंड किए जाते हैं बिकॉज जो फूफा है ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है इसकी फर्दर भी 3 टाइप्स हैं। जो फूफा जो है
ये ब्लड वेसल्स की वैसोडायलेशन में हेल्प करता है। मतलब अगर एथेरोस्क्लेरोसिस किसी पेशेंट को हो गया है तो उसमें सबसे पहले तो प्लेक फॉर्मेशन होगी, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाएगी और जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट मतलब हो जाएंगी। वो वैसोडायलेशन में हेल्प करता है। इसीलिए हम पूफा जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है वॉलनट्स, फिश, फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स, सोयाबीन्स ऑयल एक्सेट्रा। और अदर सोर्सेज में आ जाता है होल ग्रेन, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स। जो नट सीड्स मतलब इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, जो कि HDL को इंक्रीज करवाता है और वो गुड होता है पेशेंट के। ये फूड्स हैं जो हम एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस डाइट है, ये हम एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। फूड अवॉइड इन एथेरोस्क्लेरोसिस, फ्रोजन फूड्स अवॉइड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। कैंड फूड हम अवॉइड करवाते हैं। फ्राइड फूड्स जो हैं वो हम अवॉइड करवाएंगे क्योंकि उसमें हमें जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और वो पेशेंट के लिए अनहेल्दी होगा क्योंकि आगे उसकी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी। तो हम ये वाले फूड्स हैं अवॉइड करवाएंगे। फुल फैट मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करवाएंगे। फ्राइड फूड्स जैसे फ्राइड मीट है वो भी हम अवॉइड करवाएंगे। ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स ये हम कट ऑफ करवाएंगे। और जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड फूड है वो भी हम अवॉइड करवाएंगे क्योंकि हमें उसकी कुकिंग मेथड्स इन चीज़ों का नहीं पता कि वो किस तरह बना, इसलिए ये सब हम अवॉइड करवाएंगे। एंड हफ्जा विल बी फर्दर कंटिन्यू। Assalamu alaikum. I'm Hafsa from semester 7. We'll explain genetic epidemiologic studies on atherosclerosis and polygenetic heredity and monogenetic heredity. सबसे पहले हम genetic epidemiologic studies की बात करें तो genetic epidemiologic studies have identified a surprisingly long list of genetic and non-genetic risk factors for coronary artery disease. However, such studies indicate that family history is the most significant independent risk factor. तो जेनेटिक एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज हैं वो उनके मुताबिक ये है कि जेनेटिक और नॉन जेनेटिक रिस्क फैक्टर जो है वो लीड करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या ऐसे कोई एसोसिएटेड जीन्स हैं तो वो इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज को या एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज कर सकते हैं। Many Mendelian disorders associated with atherosclerosis, such as familial hypercholesterolemia, have been characterized, but they explain only a small percentage of disease susceptibility. जो फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है ये एक डिजीज है जो कि जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस जो है कॉज होता है एलडीएल की, लिवर के एलडीएल में रिसेप्टर की कमी की वजह से या प्रोटीन कोई इसका काम नहीं कर रहा सही तरह, उसको आगे हम डिस्कस कर लेंगे। जो बहुत से केसेस मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्ट्रोक के हैं वो ज्यादातर इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कोई एक जीन जो है या कोई एक फैक्टर जो है वो एक डिजीज को यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन ले लें या स्ट्रोक ले लें इसको कॉज नहीं कर सकता, या बहुत कम ऐसी डिजीज है जिसमें एक जेनेटिक जो है जीन जो है वो मतलब बहुत बड़ी डिजीज बनाए। लेकिन बहुत से इंट्रैक्शंस होते हैं जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, इसकी वजह से डिजीज होती हैं, जिस तरह मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्ट्रोक है। ये एक चार्ट है जिसके अंदर बता रहे हैं कि एलडीएल में एलडीएल कैसे जा रहा है लिवर में, और इसको हम क्योंकि आगे जो हमने देखना है स्टडीज वगैरह उसके अंदर यही चीज जो है वो डिस्कस करनी है, तो मैं ये बता रही हूँ कि इसमें जो साइकिल है वो क्या है। तो एलडीएल जो है ये ब्लड में जाता है, ब्लड में होता है और ये लिवर में प्रोसेसिंग के लिए जाता है, और लिवर में जाने के लिए इसको इसके लिवर में रिसेप्टर्स होते हैं जो यहाँ लगे होते हैं, और रिसेप्टर के साथ एलडीएल रिसेप्टर के साथ एलडीएल बाइंड करता है और लिवर के अंदर जाता है, जहां से उसको कोलेस्ट्रॉल बाइंड करता है, कोलेस्ट्रॉल फिर जाकर उसको टिश्यूज में लेके जाता है। और अगर कोई मतलब एलडीएल रिसेप्टर्स काम ना कर रहे हों तो जो एलडीएल है वो सारा ब्लड प्लाज्मा में ही रह जाता है और इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये नॉर्मल साइकिल है एलडीएल किस तरह होता है एलडीएल की।
अब हम मोनोजेनेटिक हेरिडिटी की बात करते हैं। इसमें क्या है कि सिंगल जीन डिसऑर्डर रिप्रेजेंट द मोस्ट रिमार्केबल एग्जांपल्स ऑफ द जेनेटिक implications to atherosclerosis. Several monogenic diseases elevate plasma impairing the activity of hepatic LDL receptors, which normally clear LDL from the plasma. तो बहुत सारी मोनोजेनिक डिजीजेज हैं जिसके अंदर एलडीएल प्लाज्मा लेवल ऑफ एलडीएल वो हाई हो जाता है। वो क्यों हाई होता है? क्योंकि लिवर के एलडीएल रिसेप्टर्स जो हैं वो काम नहीं करते, इसकी वजह से जो ब्लड से एलडीएल क्लियर नहीं होता और वेसल्स में ही रह जाता है, इसकी वजह से नैरोइंग ऑफ आर्टरी और एथेरोस्क्लेरोसिस तरह की डिजीजेस होती हैं। Familial hypercholesterolemia was the first monogenic disorder shown to cause elevated plasma cholesterol level. और familial hypercholesterolemia एक ये monogenetic heredity के अंडर फॉल करता है और ये इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा लेवल का जो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई हो जाता है। वो यही इसी वजह से हाई होता है कि एलडीएल के रिसेप्टर जो है वो सही काम नहीं कर रहे। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया प्राइमरी डिफेक्ट जो फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया में आता है वो ये है कि एलडीएल रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी है और इनके जो फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिवर में एलडीएलआर जो जीन है उसमें 600 जो म्यूटेशंस हैं वो देखी जाती हैं और ये डिजीज इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन बाकी जेनेटिक जो फेमिलियल जो हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया की डिजीज है उनसे ज्यादा है। वो ये है कि 1 मिलियन लोगों में एक को ये होती है। और ये फिगर है फिगर ए में है पर्सन विदाउट फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और फिगर बी में है पर्सन विद फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। तो जो फेमिली फिगर ए में जो विदाउट फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया जिसमें इसकी नॉर्मल साइकिल हो रही है, यानी कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल रिसेप्टर से जो है वो बाइंड करेगा और जाके ब्लड टिश्यूज वगैरह में चला जाएगा और ब्लड से ये उसका जो लेवल है वो नॉर्मल ही होगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ये आर्टरीज नैरोइंग और थिकनिंग नहीं होगी। जब हम फिगर बी में देखें तो इसमें फॉल्टी एलडीएल रिसेप्टर है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जाता है लेकिन उसको जगह नहीं मिलती क्योंकि एलडीएल रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, तो वो उसकी जो अमाउंट है वो ब्लड में ज्यादा हो गई है और वो डिपोजिशन उसकी होना शुरू हो गई आर्टरीज में और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ गए हैं। अब हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया फेमिलियल जो है इसकी दो तरह से हो सकता है, ये एक तो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है और दूसरा होमोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है। तो जो पेशेंट्स हैं जिनको हेट्रोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, इसका मतलब ये है कि इसके एक जीन में डिफेक्ट है, एक क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, दूसरे में नहीं है, ठीक है, और होमोजाइगस में दोनों ही में डिफेक्ट है। तो हेट्रोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें 50% ऑफ द नॉर्मल नंबर ऑफ एल रिसेप्टर्स इन द लिवर, उनके पास 50% एलडीएल रिसेप्टर्स ठीक होते हैं और 50% एलडीएल रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका 50% जो एलडीएल है वो ब्लड प्लाज्मा में ही रह रहा होता है, 50% जो है आगे प्रोसेस हो रहा होता है। और इनका फिर जो रिस्क फैक्टर है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज प्लाज्मा एलडीएल का जो लेवल है वो 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस इनको ज्यादा होते हैं, बल्कि होते हैं और मतलब सिवियरिटी में 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं। However, LDL levels in those who are homozygous are 6 to 10 times normal level, क्योंकि इनके मतलब अगर हेट्रोजाइगस पेशेंट में 50% काम नहीं कर रहे तो होमोजाइगस के पेशेंट में 90 to 95% जो है वो एलडीएल रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका ज्यादा अमाउंट जो है एलडीएल की वो ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल की वो ब्लड में रह रही होगी और उनकी चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए है वो होमोजाइगस पर्सन्स हैव सीवियर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस एंड यूजुअली डाई इन चाइल्डहुड फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो इसकी वजह यही है कि उनकी एथेरोस्क्लेरोसिस इतना ज्यादा हो गया है कि उनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है, चाइल्डहुड में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब ये है ऑटोसोमल रिसेसिव हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है ये होमोजाइगस रिसेसिव हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया से मिलता जुलता है।
लेकिन इसका कॉज डिफरेंट है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट जो हैं वो सेम ही आते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर हेरिडिटरी हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया की काइंड है, जिसके अंदर जो 10 मिलियन में से एक बंदे को होती है। द मोलिक्यूलर कॉज इज प्रोटीन। तो इसमें जो डिफेक्ट आ रहा होता है वो हेपेटिक एडाप्टर प्रोटीन में आ रहा होता है। हेपेटिक एडाप्टर प्रोटीन काम नहीं करता, जिसकी वजह से एलडीएल बाइंड तो होता है एलडीएल रिसेप्टर के साथ, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पाता। जब उसको मैम आवाज आ रही है? जी बेटे आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करो। जी ठीक है। तो हेपेटिक इसमें क्या होता है कि वहां पे तो एलडीएल रिसेप्टर काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे प्रोटीन काम नहीं कर रहा होता। जब प्रोटीन काम नहीं करता तो एलडीएल क्लियर नहीं होता एलडीएल रिसेप्टर्स के साथ, और क्योंकि वो बाइंड तो किया होता है तो बाकी एलडीएल रिसेप्टर आके लग नहीं रहे होते, फिर ब्लड प्लाज्मा में जो वो एलडीएल है वो हाई हो जाता है। मतलब, और इसमें ये बताया गया म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग दैट प्रोटीन एलिवेट प्लाज्मा लेवल to level similar to those seen in homozygous familial hypercholesterolemia। मतलब सेम ही होता है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट जो है वो सेम ही आते हैं, लेकिन जो कॉज है वो डिफरेंट है। पॉलीजेनेटिक हेरिडिटी। अब हमने in the majority of the cases it is not possible to identify single genetic determinant। बहुत सी केसेस में ऐसा होता है कि सिंगल जेनेटिक डिटर्मिनेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, एंड इट इज लाइकली दैट सेवरल मेजर जीन्स में कंट्रीब्यूट टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। तो ये ज्यादा लाइकली है कि बहुत सारे जीन्स, मतलब ज्यादा जेनेटिक फैक्टर्स हैं और ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इंटरेक्ट करके एक डिजीज को कॉज कर रहे हैं। Most of our success in understanding the genetic basis of common forms of atherosclerosis has come from studies of candidate genes. Genes tested for their role, और candidate genes क्या होते हैं? Genes tested for their role in atherosclerosis in vitro, in vivo and in association studies। In easy words मैं बताती हूँ। कैंडिडेट जीन जिस तरह हम ले लेते हैं एपोलिपोप्रोटीन ई जीन को, ये कैंडिडेट जीन है। इसमें ये होता है कि ये रिसर्चेस में यूज होता है, लेकिन इसके बारे में रिसर्चर्स को 100% कंफर्म नहीं होता कि यही जीन है जिसकी वजह से ये कहते हैं कि मे भी इसने कंट्रीब्यूट किया है डिजीज को, मे भी नहीं किया, जिस तरह, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है एक क्रोमोसोम पे इस तरह से होती है कि वो मतलब कंफर्म नहीं होता। Within the general population, polymorphism within genes in lipid metabolism, inflammation, and thrombogenesis are probably responsible for the wide range of atherosclerotic disease। अब एपोलिपोप्रोटीन ई जीन की बात कर लें, जो कि कैंडिडेट जीन है। In 1970, it is identified that the common genetic differences of apolipoprotein E and subsequent studies tested association with plasma cholesterol level and type 3 hyperlipidemia. Among the variants of this gene, allele E2, जिस तरह apolipoprotein की काफी टाइप्स है, E1, E2, E3 और E4 है, जिसमें E2, E3 और E4 जो है ये ज्यादा कॉमन है पॉपुलेशन में, और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट है वो ApoE3 है, जिसको स्टडी किया गया। The polymorphism has functional effects on lipoprotein metabolism mediated through the hepatic binding, uptake, and catabolism of chylomicrons and chylomicron remnants, very low density lipoprotein and high density। अब हम टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया की बात कर लें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जेनेटिक इंट्रैक्शन की। अब होता तो ये है कि बहुत से जीन्स जो हैं वो कॉज कर रहे होते हैं डिजीज को, लेकिन यहाँ पे एक जीन है जिसके टाइप्स हैं, और उन टाइप में से भी हर किसी का अलग जो है वो अफेक्ट आ रहा है। तो उसी की एग्जांपल है टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया। Almost all individuals with this common hyperlipidemia are homozygous for the E2 allele, but most individuals who are homozygous for the E2 allele do not have the disorder। और अब इसको मैं एग्जांपल के तरह से ऐसे बताऊंगी कि 300 हमने एग्जांपल लिया
जिसमें 100 पीपल जो थे हमने E2 के ले लिए, 100 E3 के ले लिए और 100 E4 के ले लिए। अब हमने स्टडी किया कि हाइपरलिपिडीमिया की डिजीज किसको है, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि जितने भी हाइपरलिपिडीमिया की डिजीजेस उन्होंने फाइंड आउट किए वो सारी E2 अलील वाले लोगों हैं। तो हमने उनको लिया, E2 अलील जिनका था उनको लिया और देखा कि क्या इनकी मतलब प्रेवलेंस क्या है। तो उनको स्टडी करने के बाद पता चला कि 90% जो E2 अलील वाले लोग हैं उनको ये डिजीज नहीं है, लेकिन 10% को है। मतलब ये डिजीज होती E2 अलील वालों को ही है, लेकिन हर किसी को नहीं होती। उससे फिर हमने ये समरी निकाली, समराइज ऐसे किया कि जितने E2 ये डिजीज है ये हो तो E2 अलील वालों को नहीं है, लेकिन हर किसी को नहीं, और इसका मतलब है कि E2 अकेला इसका कॉज नहीं है इस डिजीज का। इसका ये है कि जेनेटिक फैक्टर्स मिल रहे हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन हो रहा है E2 अलील के साथ, उसकी वजह से उसके रिजल्ट में ये डिजीज बन जाएगा। क्योंकि अगर ये होता तो हर किसी को होता। सर हमने पिछले मोनोजेनेटिक हेरिडिटी में ये पढ़ा कि अगर एक जीन वालों को डिजीज ही लगती है तो फिर हर किसी को लग जाती है, लेकिन क्योंकि हेट्रोजाइगस है, लग तो ये होमोजाइगस की तरह रहा है कि सिर्फ E2 को ही हो रहा है, लेकिन हर किसी को नहीं हुआ, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करके। अब ये रिस्क फैक्टर्स हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए, नॉन मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल और एडिशनल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल में एज आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है इलास्टिसिटी कम हो जाती है वेजल्स वगैरह की, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है। जेंडर, फीमेल्स में इसकी प्रेवलेंस कम है, मेल्स में जो एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज है वो ज्यादा है। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसका हो सकते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से ये मॉडिफाइबल है। लेकिन अगर हाइपरलिपिडेमिया जिसका टाइप 3 नहीं है तो फिर ये मॉडिफाइबल है, अदरवाइज अगर जेनेटिक है तो फिर ये मॉडिफाइबल नहीं है। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स में इन्फ्लेमेशन, हाइपरकोमोसिस्टिनेमिया। हाइपरकोमोसिस्टिनेमिया असल में हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टीन है। तो होमोसिस्टीन क्या है, ये अमाइनो एसिड है, और इसका जब इंक्रीज का लेवल हो जाता है तो आर्टरी जो है रप्चर होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, एब्नॉर्मल एपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग hemostasis, lack of exercise, stressful lifestyle, obesity, and use of exogenous hormones. Next will be continued by Anika. Assalamu alaikum. My name is Anika. I'll represent genetic models for atherosclerosis. The most often used mouse models of atherosclerosis were a high-fat model, in which inbred mice are fed a high-fat and cholesterol diet. ApoE deficient mice fed either through a Western diet, and LDLR deficient mice fed either a Western diet or a high-fat and cholesterol diet. जो एथेरोस्क्लेरोसिस की स्टडी थी वो माउस पे की गई थी, और इस स्टडी को इस तरह से शुरू किया गया कि एक जो ApoE डेफिशिएंट माइस थे इनको हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट दी गई, और जो ApoE डेफिशिएंट माइस थे इन्हें चो डाइट दी गई जो कि एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से बनती है, और वेस्टर्न डाइट दी गई। और जो LDLR डेफिशिएंट माइस थे इन्हें वेस्टर्न डाइट दी गई, या तो इन्हें हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट दी गई। हफ्सा नेक्स्ट। Mice with different genetic makeup. The authors breed ApoE deficient mice that had C5, 7BL, 6J or strains susceptible to atherosclerosis, and C3H, HEJ, a prototypical atherosclerosis mouse resistant strain. The study demonstrated that in the mice with the ApoE deficient background that were fed a chow diet, there were no major differences in प्लाज्मा लिपिड्स। इस स्टडी में दो तरह के माइस लिए गए। एक जेनेटिक मेकअप ये था
C5 7BL6J, और ये ऐसे माइस थे जो कि ससेप्टिबल थे, मतलब जिन्हें एथेरोस्क्लेरोसिस इजीली अफेक्ट कर सकता था। और सेकंड ये थे C3HHEJ, और ये ऐसी कैटेगरी थी जो रेजिस्टेंट थे, एथेरोस्क्लेरोसिस थे, मींस के ये इजीली अपोज कर देते थे एथेरोस्क्लेरोसिस को। हफ्सा नेक्स्ट। हफ्सा काइंडली नेक्स्ट कर दो। मैंने कर दिया अनिका। इससे भी नेक्स्ट। जी, atherosclerosis susceptibility. Nevertheless, the same study has revealed that mice with the C57BL6J background developed markedly more atherosclerosis than mice with C3HHEJ background, indicating that differences in atherosclerosis susceptibility do not reside in differences in plasma lipid level. क्या हुआ कि जब ये नहीं पीछे ही रहा, स्टडी में ये पता चला कि जो C57BL6 जेनेटिक मेकअप वाले माइस थे वो ससेप्टिबल थे एथेरोस्क्लेरोसिस के, और जबकि जो C3HHEJ बैकग्राउंड वाले माइस थे वो रेजिस्टेंट थे, और जो प्लाज्मा लिपिड लेवल था वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था इसकी ससेप्टिबिलिटी में। हफ्सा नेक्स्ट। Cell type. There are variety of cell types involved in atherosclerotic process, including endothelial cells, smooth muscle cells, monocytes, macrophages, and T lymphocytes. Genetic variation that affect some of these cell types could influence susceptibility to atherosclerosis. तो लेकिन जो प्लाज्मा लिपिड लेवल था वो तो एथेरोस्क्लेरोसिस की ससेप्टिबिलिटी को अफेक्ट नहीं था कर रहा, लेकिन देयर आर सर्टेन सेल टाइप्स जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की ससेप्टिबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे, और वो ये हैं जो मैंने बताए हैं। जी नेक्स्ट। आउटकम्स. They have generated chimeric mice by performing bone marrow transplantation of C57BL6J bone marrow into C3H SW mice and C3HW marrow into C57BL6J mice that have proved that C56BL6J mice that received C3H SW bone marrow were not protected from atherosclerosis, and C3H SW mice that received C5A7BL6J bone marrow did not develop increased atherosclerosis. General conclusion of this study is that atherosclerosis development was determined by the genotype of the host rather than the genotype of bone marrow donor, suggesting that genetic differences in atherosclerosis susceptibility are not conditioned by the hemopoietic cells. So इस स्टडी के ये आउटकम आया कि अगर हम काइमेरिक माइस भी जनरेट प्रोड्यूस करें, काइमेरिक माइस एक ऐसा माइस कि जिसका हम जेनेटिक मेकअप चेंज कर दें, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, वो माइस जो कि ससेप्टिबल था एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके अंदर हमने जेनेटिक मेकअप डाला उस माइस का जो कि रेजिस्टेंट था, और जो रेजिस्टेंट माइस था उसके अंदर जेनेटिक मेकअप डाला उस माइस का जो कि ससेप्टिबल था। तो इसका रिजल्ट ये आया कि जो रेजिस्टेंट माइस था, इटसेल्फ रेजिस्टेंट था, वो रेजिस्टेंट ही रहा, चाहे हमने उसमें जो जेनेटिक मेकअप है वो डाल दिया जो ससेप्टिबल था। तो सो इट शोज के जो होस्ट का जेनेटिक मेकअप है ये अफेक्ट करेगा ससेप्टिबिलिटी को, ना कि डोनर का। हफ्सा नेक्स्ट। जी, प्रिवेंशन। इसकी प्रिवेंशन में आ जाता है स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग को क्विट करना है, क्योंकि जब कोई बंदा स्मोक करता है तो उसके लंग्स में जो कार्सिनोजेन हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो अफेक्टेड होती है, और जब वो अफेक्टेड होती है तो रिजल्टेंटली क्या होता है, हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। जब हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो फिर डिफरेंट कार्डियक डिजीजेस होना शुरू हो जाते हैं।
एंड सेकंड ईट हेल्दी फूड्स। हफ्सा पीछे ही रहने। लूज एक्स्ट्रा पाउंड्स, वेट लूज करना है। वेट इसलिए कम करना है क्योंकि जब वेट नॉर्मल बीएमआई से ज्यादा होता है तो इससे ये होता है फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड करती है हार्ट डिजीज को। स्ट्रेस को मैनेज करना है क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर का कोज हो सकता है, और इसमें मेडिटेरियन डाइट लेनी है। डू एक्सरसाइज बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज कैन कंडीशन योर मसल्स टू यूज ऑक्सीजन मोर एफिशिएंटली। एक्सरसाइज करनी है क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज मसल्स को एफिशिएंटली एबल करेगी कि वो यूज कर सके ऑक्सीजन को। और जब भी कार्डियक डिजीज होते हैं उनके जो मेन कॉजेज हैं उनमें से एक ये भी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए हमने ये मेक श्योर करना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहे। Okay, thank you. Now, Sana will continue. Assalamu alaikum. My name is Sana Hussain and I'm here to present about the treatment of atherosclerosis. Treatment, there is no proof that any supplement will cure atherosclerosis. However, it can be treated with a healthy diet and exercise plan and prescription with medicines and along with supplements. Hafsa next. Lifestyle intervention and the role of diet. Lifestyle changes such as eating a healthy diet and exercise, it can control the disease. Best diet for atherosclerosis patient includes a diet rich in fruits and vegetables, whole grains, fish, lean meats, and poultry. Low-fat dairy products, nuts, seeds, legumes, and beans and peas. And next, Hafsa. The role of exercise. Exercise helps to prevent atherosclerosis in a number of ways. It keeps arteries healthy by lowering bad cholesterol and boosting good cholesterol that helps to cure atherosclerosis. एक्सरसाइज क्या करती है कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल होता है हमारी बॉडी में उसको कम करती है और एचडीएल को इंक्रीज करती है जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। मैम आप ठीक आ रही है? आपसे एक मिनट पीछे करना। Regular aerobic exercises that can help fight atherosclerosis like brisk walking, swimming, and bicycling are good choices. Medications. It ranges from our cholesterol medications like drug known as statins and fibrates. Cholesterol medications क्या करती है कि lower density lipoprotein जो कि bad cholesterol होता है हमारी बॉडी में उसको कम करती है और high density lipoprotein को हमारी बॉडी में ज़्यादा करती है। Other medications like antiplatelet medications, beta blockers, ACE inhibitor and calcium channel blocker ये सब जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस को कम ये कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के लिए यूज होती है जो कि हमारे हार्ट रेट को कम करती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। चेस्ट पेन जैसे एंजाइना है इन सबको भी ये मेडिकेशन जो है ओवरकम करती है। वाटर पिल्स ये भी वाटर डायूरेटिक जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देती है। नेक्स्ट surgical treatments include angioplasty and stent replacement, endarterectomy, fibrinolytic therapy, and bypass surgery. In angioplasty and stent replacement, a stent is placed in the blocked artery. In a blocked artery that is left in artery to keep the artery open. एंड्रेक्टोमी में क्या होता है कि ना जो फैटी डिपॉजिट्स होता है हमारी आर्टरी में वहाँ पे उसको फैटी डिपॉजिट्स को रिमूव कर देते हैं। इट इज़ यूजुअली ये ज़्यादातर नेक आर्टरी में किया जाता है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, इसको कैरोटिड एंड्रेक्टोमी भी कहते हैं। फिब्रोनेटिक थेरेपी में जो हमारी आर्टरी में ब्लड क्लॉट हुआ होता है उसमें ड्रग्स के ज़रिए इसको क्लॉट को डिसॉल्व किया जाता है और बाईपास सर्जरी में जो है वो वेजल्स को सिंथेटिक फैब्रिक के जरिए खोला जाता है और इसमें क्या कहते हैं ब्लड फ्लो कराया जाता है जहाँ पे आर्टरी नैरो हुई होती है। Lifestyle intervention and role of diet. Lifestyle changes such as eating a healthy and do exercise daily to control to disease.
Gene therapy. In gene therapy, it involves gene replacement therapy in patients with defined genetic disorder. It causes a premature arteriosclerosis overexpression of protein, which directly or indirectly inhibits the arteriosclerosis or stabilizes the vulnerable lesions. Next, in this, did you connect me? In this picture, it is showed that the defective gene is replaced with the corrected gene in the treatment of gene therapy of arteriosclerosis. Conclusion: arteriosclerosis, as we know, a disease that affects millions of people nowadays. It can cause a heart attack as well as the death of thousands of people every day. It is not completely preventable, but but it can be uh, preventable with many risk factors. A complex disorder with environmental causes and strong genetic basis. The relatively recent appreciation that inflammatory responses that plays a key role in arthrogenesis implies that inhibiting inflammation that may provide anti-arthrosclerosis therapy. Any questions? Okay, ji, it was a well presented uh, presentation. I have some questions and I would like to ask any one of you. Okay, what is the difference between atherogenesis and angiogenesis? मैम जो एनजीओ एथेरोजेनेसिस है वो आर्टरीज में होगा, जो एनजीओ होगा वो वेन्स में होगा। अच्छा, थोड़ा सा दोबारा सोचें कि एंजियोजेनेसिस क्या मैम होता है। एंजियोजेनेसिस तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेसल्स को कहते हैं। बिल्कुल, एंजियोजेनेसिस हमने पढ़ा था कैंसर में कि खुद ही सेल्फ सिग्नलिंग से न्यू सेल्स डेवलप होने लग जाते हैं, तो वो एंजियोजेनेसिस है और उनकी जो डेथ है वो स्टॉप हो जाती है, तो वो बढ़ते जाते हैं और कैंसर का कॉज बनते हैं। एथ्रोजेनेसिस है कि डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द आर्टरीज। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मैं हाफिजा हफ्सा से पूछूं कि उन्होंने अपना जितना पार्ट प्रेजेंटेशन में प्ले किया उसको समराइज करके मुझे एक दफा वो बता दें। ओके मैम। मैम मैंने तो पहले ये मोनोजेनेटिक हेरिडिटी और पॉलीजेनेटिक हेरिडिटी के बारे में बताया था। ठीक तो है। मोनोजेनेटिक हेरिडिटी में ये बताया था रिसर्चर्स ने कि ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और पॉलीजेनेटिक हेरिडिटी में वो मल्टीपल जीन्स उसमें उसके कॉज कर रहे हैं, और उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है, वो भी एक डिजीज़ को कॉज कर रहा है। मोनोजेनेटिक हेरिडिटी में फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया जो था वो कॉज हो रहा था, जो कि एक मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर था। और ये फिर आगे इसके फर्दर टाइप्स हेटेरोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और होमोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया था। अब जो हेटेरोजाइगस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया था वो 50% जो था उसके एलडीएल रिसेप्टर काम करते थे, 50% नहीं करते थे, जबकि जो होमोजाइगस था उसमें 90% को 90 to 95% तक जो है उसके एलडीएल रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, जबकि उनका डेथ रेट ज़्यादा होता है बनिस्बत हेटेरोजाइगस के, क्योंकि म्यूटेशंस जो है उसकी एक जीन में हो रही, एक क्रोमोसोम में हो रही होती है, उसमें दोनों क्रोमोसोम्स में हो रही होती है। तो उसके बाद एक उसी तरह का एक डिजीज़ थी जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कहला रही थी, लेकिन इसका कॉज डिफरेंट था। इसका कॉज ये था कि प्यूटेटिव हेपेटिक एडेप्टर प्रोटीन जो है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा बेटा, जो मैं है आपसे हाई। पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज प्यूटेटिव हेपेटिक एडेप्टर? आपने अपने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। जी मैम, ये मैंने जितना पढ़ा था उसमें ये था कि हेपेटिक अडेप्टर जो है ये प्रोटीन है जो कि एलडीएल रिसेप्टर्स के साथ एलडीएल को क्लियर करके लिवर में लाता है। तो बेशक एलडीएल रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड कर भी जाए, तो अगर ये काम नहीं कर रहा तो जो एलडीएल वो अंदर नहीं आ सकता लिवर के, और उसके आगे प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा लेवल है एलडीएल का वो हाई हो जाता है। मैम आवाज़ नहीं आ रही।
एलडीएल की सेफ रेंज क्या होती है? मैम 130, ये 140 आई थिंक सो, कंफ्यूज्ड। मैम 100 to 129। 100 से लेस देन। It's been a whole semester I have asking you people to work on the levels of metabolic syndrome and hyperlipidemia. यस मैम। हाइपरलिपिडीमिया में आपकी लिपिड प्रोफाइल एलिवेटेड है, उसमें एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल। तो ये अपना पूरा सेमेस्टर गुजर गया, इसको देख लें एक दफा, इसको याद कर लें, आपके बहुत काम आएगा। मैम 40 to 60 लेस देन HDL होता 100। है 40 मैम एचडीएल है, और एचडीएल 40 है और एलडीएल LDL लेस देन 100। यस, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? मैम नॉर्मल रेंजेस। जी, नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, कि किससे बिलो मैम होने चाहिए? 125 से 200 तक। हाँ जी। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया किसको कहते हैं, जिसमें कितना जाता है कोलेस्ट्रॉल? मैम 240 से अबव होगा वो होगा। 220 भी कुछ कहते हैं, कुछ 240 भी कहते हैं। 220 को भी आप इसी में लेके आते हो। ठीक है जी, मैं पूछना चाहूंगी सना से कि मेडिटेरेनियन डाइट कैसे हेल्पफुल है इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस? मैम मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो होल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में रिच होती है, जो कि हाई एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इंक्रीज करती है हमारी बॉडी में, और एलडीएल जो है उसको डिक्रीज करती है हमारी बॉडी में, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं बिस्मा नजीर से पूछना चाहूंगी, इस पूरी प्रेजेंटेशन से उन्होंने क्या सीखा है? मैम इसमें ये सीखा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसकी जो मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं, लाइक कोई एक जीन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कोई किसी एक जीन की वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस जो हो रही हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स की वजह से हो रही हैं, आगे से उन जीन्स की मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि ये कॉज कर रही हैं। और डिफरेंट रिसर्चेज लाइक माइस वाली रिसर्च जो है ससेप्टेबल और रिसेसिव जीन्स की, तो जिस माइस पे जो क्वालिटी के जो जीन्स थे उसमें जो रिसेसिव थे सस्पेक्टेड थे उनके डिफरेंट जो है म्यूटेशंस उनमें करवाने के बाद भी उनमें चेंजेस नहीं आई, वो एज द वेल सेम ही रहे। और इसको एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी हैबिट्स करनी है, जिसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस में मेडिटेरियन डाइट आ जाती है। वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा इंटेक है, जो गुड फैट्स का इंटेक है, पूफास वगैरह हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक है। स्मोकिंग को प्रिवेंट करना है आपने, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और स्ट्रेस को प्रिवेंट करना है, मैं एक्सेट्रा। अरीज फातिमा से कहूंगी कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर लें। मैम जो आपने हफ्जा से क्वेश्चन किया था म्यूटेटिव हेपेटिक अडेप्टर का, वो उसकी मुझे समझ नहीं आई। हाँ जी, हफ्सा, आप बताइएगा दोबारा, प्यूटेटिव हेपेटिक डिसऑर्डर क्या था? उसमें हेपेटिक अडेप्टर, ये जो है ये डिसऑर्डर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के पेशेंट को, जिसके अंदर जो प्रोटीन है वो काम नहीं कर रही होती सही से, जिसकी वजह से जो एलडीएल जो ब्लड में एक एलडीएल होता है हमारा, और जो कि जाता है लीवर में। अब लीवर में जाने के लिए उसको रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं, रिसेप्टर्स को कहते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स, लीवर में जो लगे होते हैं। अब जो ब्लड में जो एलडीएल है वो एलडीएल रिसेप्टर्स के साथ लगता है और जाता है। अब इसमें क्या होगा, एलडीएल रिसेप्टर्स लगेंगे तो, लेकिन क्योंकि जो उसमें डिफेक्ट आ रहा है वो प्रोटीन में आ रहा है, जो काम कराता है उसको लेके जाता है लिवर के अंदर, तो वो ये काम नहीं कर रहा होगा तो वो लगे रह जाएंगे, और उसकी वजह से
जो बाकी है क्योंकि रिसेप्टर्स भी फिल्ड हैं तो वो उसको जगह नहीं मिल रही होगी और प्लाज्मा जो लेवल है एलडीएल का वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप सबने कुछ इस प्रेजेंटेशन से सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट जो है मैंने अपडेट कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि किसकी प्रेजेंटेशन है, तो फॉर नाउ आप ये मुझे ईमेल कर दीजिएगा जो अपनी प्रेजेंटेशन है, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के आपके क्लासरूम में आपको फॉर असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज।